कान खोल करके सुन लीजिए, अगर सीमाओं को पार करोगे तो ये मोदी है, लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। আমি আবার বলছি, আমি দুর্বল নই, আমি শক্তিশালী লোক। যতদিন বাঁচবো মাথা উঁচু করে চলবো, আর যতক্ষণ বাঁচবো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বাঁচবো। মনে রাখবেন, এনপিআর নিয়ে সব রাজ্যে বলেছিল এনপিআর করব, এনআরসি করব। অনেক রাজ্য কিছু করেনি, কিন্তু আমি আইন করে, আমি অ্যাসেম্বলিতে পাশ করে বলে দিয়েছি এনপিআর করা যাবে না, আমি করব না। করিনি, কোনোদিন করব না, করতে দেব না। তাতে আমায় কি করতে পারে? সারাক্ষণ তো আমার পেছনে লাগছে, দেখতে পাচ্ছেন না? সারাক্ষণ পেছনে লাগে, টাকা দেয় না, এমনকি খাদ্যের টাকাও দেয় না। তাতে কি যায় আসে? আমার সে তাকাত আছে, শক্তি আছে, আমি জানি কি করে কি করতে হয়। একটা প্রধানমন্ত্রী দেশের, কখনো শুনেছেন প্রধানমন্ত্রীরা মিথ্যে কথা বলে? কখনো শুনেছেন মুখ্যমন্ত্রীরা মিথ্যে কথা বলে? কখনো শুনেছেন বড় রাজনৈতিক নেতা মিথ্যে কথা বলে? আরে প্রধানমন্ত্রী দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছে সরকারি কর্মচারীরা নাকি মাইনে পায় না। এবার কি উদ্ভট কথাবার্তা! কোন সরকারি কর্মচারী মাইনে পায়নি? দেখান মোদী বাবু। আর আপনি বিএসএনএল বিক্রি করে দিয়েছেন, সেল বিক্রি করে দিয়েছেন, রেল প্রাইভেটাইজ করে দিচ্ছেন, কোল বিক্রি করে দিচ্ছেন, লাইফ ইন্স্যুরেন্স বিক্রি করে দিচ্ছেন। আগামী দিন ব্যাংকের টাকা মানুষ পাবে না, ইন্স্যুরেন্সের টাকা পাবে না। আগে জবাব দিন। আজকে বাংলার কৃষকরা শান্তিতে আছে। যারা কৃষক বন্ধু আছেন, যাদের নেই তারা আবার লিখিয়ে নেবেন। ডিসেম্বর জুনে বছরে দুবার করে জুন মাস, এই জুলাই আগস্ট মাস এবং নভেম্বর ডিসেম্বর 2 মাস করে হবে দুয়ারে সরকার। মনে রাখবেন, কৃষক বন্ধু স্কিমে আমরা 2 লক্ষ টাকা করে দিচ্ছি যদি কেউ মরে যায় কৃষক। মনে রাখবেন, শস্য বীমা 1 টাকাও কৃষকদের দিতে হয় না, বিনা পয়সায় আমরা শস্য বীমা করে দিচ্ছি। আর যে টাকাটা আমরা দিতাম 5,000 টাকা করে বছরে, যারা 1 একর জমি আছে পেতেন, আর যারা 1 একরের কম আছে তারা 1,500 পেতেন, 2,000 পেতেন। সেই টাকাটা বাড়ানো হয়েছে। আগামী জুন মাস থেকে ওটা 5,000-এর জায়গায় 6,000 করে দিয়েছি, চাষিরা যেটা কৃষক বন্ধুরা পেতেন। আর যারা 1,500, 2,000 পেতেন তারা পাবেন 3,000 টাকা। মনে রাখবেন, প্রায় 15 লক্ষ বিধবা ভাতা এবং বয়স্ক ভাতা করে দিয়েছি। মনে রাখবেন, 4 লক্ষ মানবিক, যারা ফিজিক্যালি শারীরিকভাবে অক্ষম, তাদের করে দিয়েছি। মনে রাখবেন, প্রায় 18 লক্ষ কাস্ট সার্টিফিকেট এই কদিনে করে দেওয়া হয়েছে। আর যদি আমাদের সময় দেখেন তাহলে 1 কোটি কাস্ট সার্টিফিকেট করে দিয়েছি। दीदी, आप जो परिवर्तन कह रही थी, वो आप ही में आना था क्या, कि बंगाल में आना था? नानी, ये परिवर्तन कहां आना था? अरे हम तो सोच रहे थे बंगाल में परिवर्तन आएगा, लेकिन दुख से कहना पड़ता है परिवर्तन दीदी में आ गया। भाइयों बहनों, दीदी, आपने 2005 अगस्त में पूरी पार्लियामेंट में तूफान खड़ा किया था। किस बात के लिए? बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों के खिलाफ। आपने संसद में पूरी संसद को हिला दिया था, और मेरा सीना तनता दबा। एक मेरी दीदी शेरनी पूरी पार्लियामेंट को हिला रही है, भारत मां की सेवा के लिए हिला रही है। और आप कहती थी ये बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, वो लेफ्टिस्टों की वोट बैंक बन गए हैं, ये लेफ्टिस्ट लोग उनको ये कर रहे हैं, इनको निकालो, ये मांग आप कर रही थी। दीदी, आपने 2005 में जो पार्लियामेंट में बोला, ये आपका भाई आज वही बोल रहा है। वही बोल रहा है
और आप मुझे रस्सा बांध करके जेल में डालने की बात कर रही हो? ये कैसा न्याय है दीदी? ये न्याय ठीक नहीं है। आप खुद घुसपैठियों के खिलाफ थी, लेकिन अब वही घुसपैठिए आपकी मतपेटी भर रहे हैं, इसलिए आप देश के साथ अन्याय करने पर निकली हो। ये परिवर्तन आपसे अपेक्षा नहीं थी दीदी, आप नहीं बदल सकती। आप वापस लौटो, भारत मां की सेवा करने के लिए वापस लौटो। अरे सत्ता तो आएगी जाएगी, कुर्सियां तो आती है जाती है। भाइयों बहनों, भारत सरकार के एक मिस्टर सईद करके एमओएस हुआ करते थे। उन्होंने बांग्लादेश के घुसपैठियों के लिए क्या कहा था? लेफ्टिस्ट हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर थे इंद्रजीत गुप्ता, वो बांग्लादेशियों के घुसपैठ के लिए क्या कह रहे थे? अरे बुद्धदेव भट्टाचार्य, उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की सीमा पर जो जिले हैं, जहां पर जो मदरसा चल रहे हैं, वो संकट का कारण बने हुए हैं। ये आप लोगों ने नहीं कहा था क्या? तब आपका सेक्युलरिज्म कहां गया था भाई? और आज मोदी 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 करके चिल्ला रहे हो। ये सारी बातें एक समय आप बोल चुके हो। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आए हैं, मैं शरणार्थी की बात नहीं करता। शरणार्थी बेचारा नहीं आएगा तो कहां जाएगा? क्या कोई भी दुनिया में, सिर्फ बांग्लादेश छोड़ दीजिए, अगर अफ्रीका में मूल हिंदुस्तानी व्यक्ति अगर वहां से निकाला जाएगा तो कहां जाएगा भाई? क्या उसका पासपोर्ट का रंग देखेंगे क्या? कि खून का रिश्ता देखेंगे? जो शरणार्थी हैं उनको बांग्लादेश से निकाला गया है, और ये शरणार्थी हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं। जो भारत मां की जय बोलेगा, अगर उसके लिए भारत में जगह नहीं होगी तो कहां होगी भाइयों, कहां होगी? और इसलिए दीदी, आपने 2005 में मांग की थी, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत पर आक्रमण है, इन्फिल्ट्रेशन। मैं आपको वादा करने आया हूं भाइयों, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो हम करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, एक महिला राज्य की मुख्यमंत्री हो और बलात्कार की घटनाएं पहले से बढ़ जाती हो तो क्या कहना? क्या कहना बताओ? मोदी को गाली देना आसान है, लेकिन कम से कम मेरे बंगाल की बेटियों को बचाना, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इतना प्यार करते हैं, दीदी बहुत नाराज है। और जैसे जैसे आपका प्यार बढ़ता जाता है, उधर दीदी का गुस्सा बढ़ता जाता है। दीदी को इतना गुस्सा आया है, इतना गुस्सा आया है कि दिन में 200-500 बार तो मुझे याद करती है।